Standard 6, Subject General Science, lesson number 7, Nutrition and Diet. In last online lecture, we learned what is a balanced diet, how to get a balanced diet. Today we are going to learn about a malnutrition. Malnutrition in Marathi, it is called kuposhan. Let us study what is malnutrition. Malnutrition occurs when all the nutrients that the body needs are not obtained in the proper proportion from the diet. Means what? हम जो भी खाना खाते हैं, अगर वो जो खाना खाते हैं, जो डाइट हम लेते हैं, उसमें जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाने चाहिए, वो अगर उसमें नहीं होते तो उसके कारण होता है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण. This happens when a person does not get sufficient food or when the diet is not balanced. ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब हम एक ही प्रकार का जो भी फूड होता है वो खाते हैं, तो उसके कारण भी सब ये हो सकता है. In last lecture we learned our body need all the nutrients, that is carbohydrates, fats, proteins, fibers, vitamins and minerals in a proper proportion, in a balanced diet. That is called balanced diet. If you are not getting that balanced diet, that particular person suffered with the malnutrition. If one's diet exceeds one's need, it is called overnutrition. Now in this picture, the two examples are shown. First one is a malnutrition. ये जो लड़का दिख रहा है यहाँ पर, वो बहुत ही वीक है, मतलब उसको बोल सकते हैं हम माल न्यूट्रिशन, कुपोषण. और ये जो है सेकंड वन, ओवर न्यूट्रिशन. ओवर न्यूट्रिशन मतलब कि ज्यादा फैटी होना. अगर हमारे बॉडी में जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिशन अगर जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम ओवर न्यूट्रिशन. अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन माल न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन. Let us study what is junk food. Chocolates, noodles, burgers, pizzas, chips, bottled soft drinks, attractively packed snacks, and also ready fried foodstuffs available in the market such as vadas, pakoras, etc. are very tasty and we like them very much. However, these foodstuffs contains refined flour, sugar, oil in a large proportion. When refined flour is made from wheat or when sugar is made from sugarcane, many nutrients in the wheat or sugarcane are lost in the process. Hence, all we get from this food is energy and our hunger is satisfied. ये जो भी मेंशन किए गए सारी चीजें, चॉकलेट, नूडल्स, बर्गर, पिज्जा, वड़ा, पकोड़ा, ये हमें सब खाने में तो बहुत अच्छा लगता है. लेकिन ये जो बनाने की जो प्रोसेस होती है, जैसे कि शुगर केन से शुगर मिलती है, लेकिन शुगर केन जो नेचुरली होता है, जब उससे शुगर बनती है तो उसमें बहुत सारे उसके जो केमिकल प्रोसेस होती है, उसकी वजह से हमारे बॉडी को नुकसान होता है. नेचुरली इफ वी ईट a lot of junk food, अगर हम ज्यादा फूड जंक फूड खाते हैं, we will get insufficient quantities of the atoms from other food groups. If this happens frequently, our body soon experiences a shortage of proteins, vitamins and minerals and that may lead to malnutrition. अगर हम जंक फूड, जो हम बाहर का फूड होते हैं, मतलब कि जो ऊपर मेंशन किया गया है, वड़ा, पकोड़ा, भेल, चाइनीज, देन पिज्जाज, बर्गर्स, ये सब ज्यादा ही खाते हैं तो उसमें से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं. उसका फाइनल रिजल्ट होता है माल न्यूट्रिशन. हमारे बॉडी में जो सभी न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें मिलते नहीं है, इसलिए है, मतलब बहुत सारे लोगों को होता है माल न्यूट्रिशन. जंक फूड ईटन फ्रीक्वेंटली आल्सो कॉजेस ओबेसिटी. और वही जंक फूड हम ज्यादा अगर खाते हैं तो उससे ओबेसिटी भी होती है, मतलब कि ओवर न्यूट्रिशन. Obesity is not good for our health. It is not good for our health. As such foods do not supply all the necessary nutrients, they are called junk food. So understood what is junk food? Next one.
how to avoid obesity. First one, have a balanced diet. अगर हमें ओवर न्यूट्रिशन से मतलब कि छुटकारा चाहिए तो हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए. सेकंड वन, ईट होल ग्रेन्स, ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद देयर स्किन्स. जो भी हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे बनाना खाते हैं तो बनाना का पील्स तो निकलता ही है, लेकिन अगर हम एप्पल खा रहे हैं, चीकूस खा रहे हैं, तो उसका जो ऊपर का पील होता है मतलब कि उसकी स्किन होती है, उसके साथ ही हमें उसको अच्छे से वॉश करके खाना है, उसको निकालना नहीं है. इंक्रीज यूज ऑफ बाइसिकल. ज्यादा से ज्यादा हमें पैदल चलना है या बाइसिकल का यूज करना है, मोटरसाइकिल मतलब कि व्हीकल्स का यूज नहीं करना है. प्ले मोर आउटडोर गेम्स. जितना हो सके उतने आपको आउटडोर गेम्स भी खेलने और एक्सरसाइज भी करनी है. आपको क्या नहीं करना है? डू नॉट ईट इफ यू आर नॉट हंग्री. अगर आपको भूख नहीं है फिर भी आप जबरदस्ती खा रहे हैं, वो हमें नहीं करना है. डू नॉट वॉच टीवी व्हाइल ईटिंग. खाना खाते वक्त कभी भी टीवी नहीं देखना है, विच कॉजेस ओबेसिटी. डू नॉट यूज मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रेवलिंग और शॉर्ट डिस्टेंस. जैसे मैंने अभी बताया, जो अगर आपको बहुत ही नजदीक की जगह पर जाना है तो वहां पर आपने पैदल ही जाना है और ज्यादा से ज्यादा बाइसिकल यूज करनी है. अवॉइड प्री कुक पैकेज फूड्स. जो भी पहले पकाया हुआ खाना है वो भी हमें अवॉइड करना है. और दूसरा, जो मार्केट में पैकेज फूड मिलता है जैसे कि चिप्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, वो भी हमें अवॉइड करनी है. Let us study next point of the lesson, adulteration of food. What is adulteration? Adulteration in Marathi, भेसळ, mixing. In order to earn more profits, cheaper substances of low quality are mixed with the foodstuff. दुकानदार बहुत सारे बार क्या करते हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है, इसीलिए वो जो फूड आइटम्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसमें मिक्स करते हैं, जिसके कारण उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है. दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एडल्ट्रेंट्स. जो सब्सटेंसेस वो हमारे फूड में ऐड करते हैं उसको बोला जाता है एडल्ट्रेंट्स. एंड एडिंग देम टू फूड स्टफ्स इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन ऑफ फूड. Adulterants may even be poisonous or harmful to health. Such adulterated food is impure and harmful and so unfit for consumption. जिस फूड में एडल्ट्रेंट्स ऐड किए गए, मतलब कि जो हम एडल्ट्रेशन फूड खा रहे हैं वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल है. What is adulterants? Adulterants used to adulterate food are such that they will remain unnoticed even when mixed with the food. Let us study some examples of food items and their adulterants. Milk. मिल्क में कौन से एडल्ट्रेंट्स मिक्स किए जाते हैं? ज्यादा पानी डाला जाता है, केमिकल्स लाइक यूरिया और स्टार्च भी उसमें ऐड किए जाते हैं, जिसके कारण वो जो मिल्क हम पी रहे हैं उसमें का मिल्क का जो प्रोटीन फैट्स जो मिलने चाहिए वो कम हो जाते हैं और उसमें पानी या यूरिया स्टार्च उसमें ज्यादा बढ़ जाता है. चिली पाउडर, ब्रिक पाउडर, पाउडर पंपकिन इसके अंदर ऐड किया जाता है प्रॉफिट ज्यादा मिलाने के लिए. देन पेपर कॉर्न्स, पापाया सीड्स उसमें ऐड किए जाते हैं. आइसक्रीम, वॉशिंग सोडा और पेपर पल्प उसमें ऐड किया जाता है. राइस, स्मॉल व्हाइट स्टोन्स, पीनट्स, रेडिश पेबल्स और स्टोन्स उसमें ऐड किए जाते हैं उसका प्रॉफिट ज्यादा मिलाने के लिए. सो दिस इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन ऑफ फूड. Like this, we are completed the lesson number 7. Let us study what we have learned in the lesson. First point, nutrition is the process of taking food and water and using them to obtain energy and for the purposes of growth and other bodily functions. Second one, diet. A diet containing all nutrients in the right quantity is called balanced diet. Third one, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, and fiber are the nutrients in food. A balanced diet includes all nutrients in the right quantities. Fourth,
The food pyramid help us to choose a balanced diet. जो फूड का पिरामिड हमने देखा था उसमें से हमें अंदाजा आता है कि एक दिन के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए और उसका जो भी रेशियो होता है वो भी हमें समझ में आता है. Fifth one, whether a person is malnourished or has deficiency diseases depends upon the proportion of food taken. Sixth one, junk food gives us energy but not other nutrients. जंक फूड हमें सिर्फ एनर्जी देते हैं काम करने के लिए, लेकिन उसमें जो सभी न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स होने चाहिए वो उसमें होते नहीं है. लास्ट वन, 7th पॉइंट, एडल्ट्रेटेड फूड इज इम्प्योर एंड हार्मफुल टू हेल्थ. जो भी फूड हम जो खा रहे हैं उसके अंदर जो मिक्सिंग किया गया है, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड हम जिसको बोलते हैं, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है. स्टूडेंट, जस्ट कंप्लीट दिस टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज in your classwork. Thank you.